So, hello and welcome. My name is Alok Singh, and we are going to discuss an important topic that is related to current affairs domain of UPSC, particularly related to General Studies Paper 2. Paper 2 का जो syllabus segment UPSC का है, prelims as well as for that mains, that is international institution जो आपके General Studies Paper 2 mains के syllabus में primarily mentioned है, and prelims के perspective से current affair के domain से आज की जो discussion that we are going to deal today is quite important and relevant. Simultaneously, it is also to a certain extent important for general studies paper 1 and to a domain from the prelims perspective एक important इसमें जो development हुई है that is related to paper 3 of the UPSC syllabus. So the topic that we are going to deal in this current affair discussion is prominently related to G20 summit. G20 summit of 2025 that has been recently concluded in Johannesburg city of South Africa. साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग सिटी में ऑफ अ रीसेंट एंड ऑफ नवंबर 21 से लेके 22 ऑफ नवंबर के टाइम पीरियड के अराउंड जो है G20 समिट जो है कंक्लूड हुई है. अब इस G20 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं आज के सेशंस में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट वेर द की हाइलाइट्स एंड आउटकम, व्हाट वाज द न्यूज एसोसिएटेड विद दिस G20 summit, and prominently from the static perspective we will understand what is G20. What is G20 all about? इसका evolution G20 का कब हुआ था, इसका gradual expansion, who are its members, and over the time how G20 has performed in its aims and objectives, ये हम देखेंगे. And we will see कि whether G20 has its own secretariat and how it functions overall. And in the later part, we will see G20 and its correlation with India, how India has used G20 as a platform to perpetuate its global agendas as well as its aims and objectives. And beyond G20 में क्या criticisms हैं, क्या loopholes हैं, and overall हमारी जो global power dynamics हैं in the contemporary scenarios वो कैसे shape up हो रही है, इसमें जो है हम broader एक brief perspective से आज का discussion लेंगे. तो as discussed कि जो G20 summit है, this G20 summit of for the year 2025, it was held in Johannesburg, city of South Africa. And this G20 summit is particularly important for few of the reasons. अब वो reasons क्या हैं जिसके perspective से ये G20 summit जो है quite important और relevant है. It is for the first कि ये G20 summit जो है, this G20 summit is being hosted for the fourth consecutive times by the countries of Southern Bloc. That means Southern Blocs are those countries which are developing. That means these developing countries are togetherly clubbed in the Southern Bloc nation. In Southern Bloc में जो है इन developing nations को club किया गया है, all because इनकी agenda, objectives and goal along with the issues quite similar हैं. तो for the fourth consecutive times, that means right from 2022 up till 2025 fourth consecutive time जो है कोई सदर्न ब्लॉक की कंट्री जो है इसको कंसिस्टेंट वे में G20 समिट को जो होस्ट करिए. दैट मींस 2022 में वी गॉट टू सी कि G20 summit was hosted in Indonesia. In 2023 the G20 summit was withheld in India, and in 2024 it was held in Brazil. And simultaneously, the present G20 summit is withheld in South Africa. That means for the 4 consecutive times, G20 summit is hosted by the Southern Bloc countries. And particularly, this summit also holds due importance, all because कि अफ्रीका as a continent ने पहली बार ये G20 summit का जो event है वो होस्ट किया गया है particularly by South Africa. तो ये कुछ हाईलाइट है G20 से रिलेटेड. Now this G20 summit जो 2025 की अभी conclude हुई है, it was marred with apprehensions. बहुत सारे news and issues इस G20 summit से थे. वो क्या था? वो all because of this कि G20 में prominent members like USA, China और Russia भी हैं. But for certain different regions in prominent countries के जो head हैं, उन्होंने इस G20 समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया. जस्ट फॉर एग्जांपल, ये जो G20 समिट साउथ अफ्रीका में कंक्लूड हुई उसमें यूएसए ने ऑल टुगेदर पार्टिसिपेट करने से ही डिनाई कर दिया. उसके पीछे रीजंस
यूएसए ने ये पॉइंट आउट किया है कि जो साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे जो व्हाइट माइनॉरिटीज हैं, द व्हाइट माइनॉरिटीज लिविंग इन साउथ अफ्रीका, white minorities living in South Africa are being persecuted. You can see in this map, this is Africa continent, and South Africa over here. South Africa over here is a country where G20 summit is taking part. और ये साउथ अफ्रीका की colonial history की अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका has been colonized by countries like Dutch along with later part the Britishers. तो ये जो colonizers थे वो साउथ अफ्रीका में आकर reside करने लगे, यानी कि white Europeans started to reside in South Africa and post the apartheid movement, यानी कि white और black के बीच में जो conflict था इस 1994 के बाद, apartheid movement के बाद जो है prominently there were constitutional reforms for peaceful resolution along with the cohabitation of all the people whites as well as black. पर यूएसए ने पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पे जो व्हाइट अफ्रीकन्स हैं वो प्रोमिनेंटली प्रोसिक्यूट किए जा रहे हैं ऑल बिकॉज दे आर माइनॉरिटीज। तो यूएसए ने पिन पॉइंट किया, बट जो लार्जर एजेंडा यूएसए का था वो एजेंडा ड्रिवन ये है कि प्रोमिनेंटली इस G20 समिट में क्लाइमेट से रिलेटेड डील होने वाली है। एज यू नो कि यूएस के जो करंट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ही इज नॉट मोर इन कंफर्मेबिलिटी विद द इश्यूज रिलेटेड टू क्लाइमेट डील से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उसे डोनाल्ड ट्रंप ऑल टुगेदर दूर ही रहते हैं। पर यूएसए ने जो इसको पिन पॉइंट किया है ना, इसके रीजन के बिहाफ पे यूएसए ने ऑल टुगेदर इस G20 में पार्टिसिपेट नहीं किया। सेकंड जो है रशिया के जो हेड हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी इस G20 समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके पीछे रीजन है, द रीजन बिहाइंड इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। 2023 में व्लादिमीर पुतिन को जो रशियन प्रेसिडेंट हैं पुतिन को प्राइमरली जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 2023 में रशिया यूक्रेन की वजह से जो वॉर एंड जीनोसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल माना था। एंड ऑल बिकॉज साउथ अफ्रीका इस आईसीसी का मेंबर है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है, तो साउथ अफ्रीका ऑब्लाइज्ड हो जाता व्लादिमीर पुतिन को जो है अरेस्ट करने के लिए। तो पुतिन का भी अटेंडेंस या पार्टिसिपेशन इस G20 समिट में नहीं हुआ। चाइना के जो प्रीमियर है शी जिनपिंग, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया। एंड सर्टेन अदर कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, इसने भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बिहाफ पे पार्टिसिपेट नहीं किया। सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने भी G20 समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो एक एप्रीहेंशन था कि G20 समिट क्या अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में या इन मेंबर कंट्रीज के बीच में जो भी इस समिट में एजेंडास पे डिस्कशन होगा उसमें क्या एक कॉमन कंसेंसस डेवलप हो पाएगा। लेकिन इन सारे एप्रीहेंशंस के बाद ये G20 समिट सक्सेसफुली 122 पॉइंट्स पे एग्री करके एक कॉमन कंसेंसस मिला, एक्सेप्ट फॉर अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने सिर्फ जो है कंसेंसस नहीं डेवलप किया, रेदर जो रेस्ट ऑफ द मेंबर जो कंट्रीज थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी, डेवलप्ड कंसेंसस जिस भी एजेंडा पे G20 समिट हेल्ड हुआ था। ये कुछ करंट रिलेटेड डेवलपमेंट। अब आते हैं कोर पर्सपेक्टिव से, जो इस 2025 में ये जो G20 समिट कंक्लूड हुआ उसमें क्या डेवलपमेंट हुई। तो ये जो G20 समिट है, दिस G20 समिट of 2025 was based on the theme of solidarity, equity and sustainability। तो प्रोमिनेंट इस G20 समिट का जो थीम था सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अब ये थीम जो है प्रोमिनेंटली अफ्रीका की एक फिलॉसफी है बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन, कंपैशन एंड एम्पैथी। यानी कि सॉलिडारिटी स्टैंड्स फॉर जो G20 कंट्रीज के जो मेंबर हैं उनके बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन हो, एंड थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन जो भी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं उनके साथ इक्विटी के लेवल पे जो रिसोर्सेज की शेयरिंग है या जो भी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस है उसको शेयर किया जाए, ताकि जो आने वाला फ्यूचर हो सस्टेनेबल हो, यानी कि आज की जो प्रेजेंट नीड्स हैं उनको मीट आउट किया जाए। फ्यूचर जनरेशन के लिए भी देयर आर रिसोर्सेज अवेलेबल टू मीट देयर नीड। तो प्रोमिनेंट जो थीम था सॉलिडारिटी, इक्विटी एंड sustainability, prominently important with the perspective of preliminary examination for the state PCS examinations. These themes are being asked. Now, in this G20 summit, all because it was being hosted by South Africa. South Africa इसको host करने जा रही थी। तो previously ही South Africa के जो head थे
पॉलिटिकल हेड थे, उन्होंने बोला था कि जो ब्रॉडर इश्यूज इस G20 समिट में होंगे वो ब्रॉडली अफ्रीका एज एन कॉन्टिनेंट के जो भी इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करने में और इन इश्यूज को रेज करने के लिए होंगे। तो अफ्रीका फॉर दैट मैटर किन किन इश्यूज से सफर कर रहा है? अफ्रीका एज ए नो कि एक डेवलपिंग कॉन्टिनेंट है, राइट? प्रोमिनेंट कंट्रीज लाइक इथोपिया, साउथ अफ्रीका एंड रेस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक इजिप्ट जो है अभी डेवलपिंग सिनेरियोज में है। एक मिनरल रिच ये कॉन्टिनेंट है पर अंडर डेवलप्ड, पावर्टी हंगर जैसा इशू मास प्रेवलेंट है। तो ये G20 समिट जो है साउथ अफ्रीका में अभी रिसेंटली होस्ट किया, इसके ब्रॉडर इश्यूज भी इन्हीं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के इश्यूज पे, जस्ट फॉर एग्जांपल क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज, फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से रिलेटेड, डिजास्टर से रिलेटेड इश्यूज, राइट? एंड बियॉन्ड दैट जो फाइनेंसिंग का इशू है, जो डेट फाइनेंसिंग का इशू है, अफ्रीका ऐसे कॉन्टिनेंट सफर कर रहा है, ये सारे इश्यूज ही G20 समिट में जो है इन पे डीपर हाईलाइट था। तो इन्हीं समिट्स, इन्हीं हाईलाइट्स के पर्सपेक्टिव से जो लार्जर एजेंडा जो है इस G20 समिट का जो है डिजाइन किया गया था। तो उन वन बाय वन उन एजेंडास, उन डिस्कशन को देखते हैं कि G20 समिट में प्रोमिनेंट डिस्कशंस क्या था। तो एज डिस्कस कि G20 समिट जो है अफ्रीका की कोर फिलॉसफी दैट इज नोन एज उबुंटू। उबुंटू जो है एक अफ्रीकन फिलॉसफी है दैट बिलीव्स इन म्यूचुअल कोऑपरेशन, कंपैशन, एम्पैथी, कि पीपल कोऑपरेट विद ईच अदर। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया की फिलॉसफी है 2023 में जो G20 समिट हुआ था, उसमें हमारी जो कोर फिलॉसफी थी G20 समिट की, वो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम से ये थीम बोरो किया गया था। वैसे ही सिमिलरली ये अफ्रीकन फिलॉसफी उबुंटू है जो म्यूचुअल कॉपरेशन में बिलीव करती है, और ये बोलती है आई एम बिकॉज वी आर। एक वननेस की फीलिंग जो उबुंटू फिलॉसफी जो अफ्रीका के लेके आती है। एंड प्राइमरली ये फिलॉसफी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती आई है अपार्थाइड मूवमेंट में, जो व्हाइट और ब्लैक के बीच में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या जो भी इश्यूज थे, जिसमें नेल्सन मंडेला जो है प्रोमिनेंट फ्लैग बियरर थे, ये इसी उबुंटू फिलॉसफी पे बेस्ड थी। तो G20 समिट जो प्रोमिनेंटली इसी उबुंटू फिलॉसफी पे बेस्ड थी। एंड प्राइमरली इस G20 समिट में मल्टीलेटरलिज्म पे डीपर फोकस रखा गया। मल्टीलेटरलिज्म यानी कि 21st सेंचुरी की जो कंटेम्प्रेरी रियलिटीज है, यानी कि वर्ल्ड शुड मूव अवे फ्रॉम बाइपोलर और फॉर दैट मैटर यूनिपोलर, दैट मीन्स रशिया और यूएसए और फॉर दैट मैटर चाइना जैसी पावर्स के अलावा भी रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज इमर्जिंग पावर है, उनके इंटरेस्ट, उनके स्टेक्स को ध्यान में रखते हुए एक मल्टीलेटरल मल्टीपोलर वर्ल्ड की इमेजिनेशन इस G20 समिट की ब्रॉडर थीम थी, राइट? बियॉन्ड दैट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के पर्सपेक्टिव से इस G20 समिट में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के बारे में बात की। एज यू नो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की एक बॉडी है जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो कि अराउंड 1948 के अराउंड ये 5 मेंबर्स परमानेंट बनाए गए और इन मेंबर्स को वीटो पावर दी गई, यानी कि लार्जर ग्लोबल से किसी भी डिसीजन में इनका इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? लेकिन अभी कंटेम्प्रेरी रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, जस्ट फॉर एग्जांपल इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, राइट, इन कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है, तो उनके रिफॉर्म पे भी डीपर एम्फेसिस दिया गया है। साइमल्टेनियसली ये G20 समिट जो है अपनी इकोनॉमिक एजेंडा के साथ साथ ग्लोबल पर्सपेक्टिव के जो इशू हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल जो इंटरनेशनल टेररिज्म का इशू है, उस पे भी इस समिट में कॉमन कंसेंसस बिल्ड किया गया। एंड बियॉन्ड दैट एज वी नो कि 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील में एक कॉमन कंसेंसस बिल्ड किया था रिगार्डिंग क्लाइमेट फाइनेंसिंग, कि हर साल जो है $100 बिलियन डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग इकोनॉमीज को देंगे फॉर ग्रीनर ट्रांजिशन, जो भी क्लाइमेट के गोल हैं उनको अचीव करने के लिए। बट आफ्टर ए डिकेड इट इज रियलाइज कि जो $100 बिलियन है ये सफिशिएंट नहीं है। तो $1 बिलियन से एक्सेलरेट करके जो मोर फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, दैट इज बिलियंस टू ट्रिलियंस पे भी, इस पे जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग का पर्सपेक्टिव, उस पे भी डीपर एम्फेसिस एंड आउटकम हमें इस समिट में देखने को मिला है। बियॉन्ड वीमेन एम्पावरमेंट पे डीपर एम्फेसिस दिया गया है। एज यू नो कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड अराउंड 48 to 50% जो है women population constitute करती है। Now women are the front drivers for the major economic developments and growth around the world। तो women as an empowerment पे deeper emphasis इस G20 समिट में रखा गया है। बियॉन्ड अफ्रीका ऐसे नो कि अंडर डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, और फाइनेंसिंग के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जस्ट लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक पे डिपेंडेंट रहता है। तो प्रोमिनेंटली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो मेजर ऑफ द कंट्रीज है वो डेट रीडर, यानी कि डेट इन कंट्रीज पे ज़्यादा है। और इस पर्सपेक्टिव से जो ये कंट्रीज हैं अपनी मेजर इकोनॉमी से जो भी इनको फंड जनरेट होता है, वो डेप्ट की इंटरेस्ट पेमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, ना कि
अपनी जो कॉमन जेनेटिक्स है वहाँ के जो लोगों के ऊपर सोशल सर्विसेज पे, हेल्थ एंड एजुकेशन पे उतना एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, रेदर इंटरेस्ट पेमेंट पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, राइट। तो ये डेट क्राइसिस का जो इशू है अलॉन्ग विद फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से भी इस G20 समिट में डिस्कशन किया गया, और उसके लिए एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन स्टैब्लिश किया गया है। एक काइंड ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे सिबिल है, आपका स्कोर देती है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो सिबिल में क्या स्कोर है, तो ऐसी कुछ ये बॉडी बनाई गई है, कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन, जस्ट फॉर मूडी अगली चीज जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसी की सिमिलैरिटी पे ये जो कमीशन बनाया गया है। एंड एज एन फैक्चुअल इनपुट, जो अफ्रीका एज एन कॉन्टिनेंट अराउंड 1.8 ट्रिलियन डॉलर डेट में करेंटली है। तो प्रोमिनेंट जो मेजर रिसोर्सेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, वो इंटरेस्ट पेमेंट में ही अफ्रीका अपने जो है अफ्रीकन कंट्रीज जो है इन इंस्टीट्यूशन को पे कर रही है। बियॉन्ड, ऑल्दो अफ्रीका जो है मिनरल रिच है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, पर यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज को हार्नेस करने की कैपेसिटी नहीं है, यानी कि मेजर ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एसेस नहीं है। तो एक की डेवलपमेंट इस G20 समिट में ये भी हुई कि मिशन 300 का टारगेट रखा गया है, यानी कि अफ्रीका के 300 मिलियन फैमिलीज को जो है इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जो है प्रोमिनेंटली विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक जो है प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। इलेक्ट्रिसिटी एसेस ये सूटेबल आउटकम है, एंड फर्दर जो है अफ्रीका, बार बार मैं जो पिंच कर रहा हूँ कि यहाँ जो है अफ्रीका एज एन कॉन्टिनेंट मिनरल्स में क्वाइट रिच है, यानी कि यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल के रिसोर्सेज बहुत ही, उनका एक्सप्लॉयटेशन डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक चाइना, यूएसए, ऐसे कंट्रीज जो हैं, जो भी प्रॉस्परस एंड रिच कंट्रीज हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन अफ्रीका में करते हैं। लेकिन यहाँ से रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इन रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग अफ्रीका में नहीं हो रही है, यानी कि जो कंट्रीज जो इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दे आर गेटिंग रिचर, मोर प्रिविलेज, वहाँ पे जॉब जनरेशन रही। तो जो की हाईलाइट यहाँ पे इस G20 समिट में हुआ है कि क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क बनाया जाए अफ्रीका में प्रोमिनेंटली, जो कि मिनरल एक्सप्लोरेशन, रॉ मटेरियल के एक्सप्लोरेशन के साथ उनकी प्रोसेसिंग भी अफ्रीका में ही हो। वो इंटर्न क्या करेगी, वो जॉब जनरेशन में हेल्प करेगी। अगर इनकी प्रोसेसिंग एक प्रॉपर सप्लाई चेन नेटवर्क जो है अफ्रीका में अगर बनेगा, तो अफ्रीका का भी इकोनॉमिक से विद द टाइम इट विल इंक्रीज। एंड इसी पर्सपेक्टिव से यूथ एंड जेंडर से रिलेटेड कमिटमेंट देखा गया है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो पर्सपेक्टिव है, अनएम्प्लॉयमेंट के बियॉन्ड सर्टेन अदर पैरामीटर दैट शुड बी लेस देन 5% बाय 2030। 2030 तक जो यूथ है, जो जेंडर का जो पर्सपेक्टिव अफ्रीका ऐसे कॉन्टिनेंट में है, यहाँ पे ये रिड्यूस होके बिलो 5% बाय 2030 है। तो इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से G20 में कॉमन कंसेंसस बिल्ड हुआ, जो कि अराउंड इन मेजर 122 पॉइंट्स में से ये कुछ कोर एरियाज है। ये तो करंट रिलेटेड डेवलपमेंट हुई कि G20 समिट में अभी प्रोमिनेंटली इस 2025 में क्या क्या डेवलपमेंट्स। आने वाला जो समिट है 2026 का, उसको जो है यूएसए होस्ट करेगा। ऑल्दो यूएसए ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट दिस अज्यूम कि 2026 का जो समिट है वो यूएसए उसको होस्ट करेगा। तो ये सारी डेवलपमेंट जो है करंट रिलेटेड। नाउ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वी शुड नो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 2 कि आखिर ये G20 क्या है, इसका एवोल्यूशन कब कब हुआ, इसकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थी, एंड ग्रेजुअल एक्सपेंशन कैसे हुआ है, एंड ओवर द टाइम G20 जो एनुअली हेड ऑफ द स्टेट्स मीट करते हैं, ऑपरेट कैसे करता है। इस पे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, और फिर देखेंगे कि मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं, जो कि हमारे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। तो ये जो G20 है, इट स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ 20 मेजर इकोनॉमीज, an informal group of major economies around world। इनकी एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स 85% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी। बियॉन्ड दैट दे वर टोल्ड 2/3 ऑफ global population, and beyond that these member countries economic activities constitute about 75% of the global trade।
तो इसकी इकोनॉमिक माइट जो है इस डेटा से हमें रिफ्लेक्ट हो रही है कि इस G20 ग्रुपिंग में, जो इनफॉर्मल ग्रुपिंग में जो भी मेंबर्स हैं वो ड्यू वेटेज कैरी करते हैं रिगार्डिंग इकोनॉमी, regarding the population and regarding the trade volume that is being carried out across the globe. तो ये डेटा जो है प्रोमिनेंटली हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस ग्रुपिंग का क्वाइट लार्जर इंपॉर्टेंस है। अब इस G20 के अगर हम एवोल्यूशन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ दिस G20 ग्रुपिंग, देन पोस्ट 1997 फाइनेंशियल क्राइसिस, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, 1997 के अराउंड जो है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। उसी के बाद इसी फाइनेंशियल क्राइसिस के पोस्ट में, जो इसी फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो है प्रोमिनेंटली वी गॉट टू सी कि G20 ऐसा इनफॉर्मल ग्रुपिंग का जो है बर्थ होता है, जिसमें प्रोमिनेंटली द गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक of the member countries, just for example Central Bank of India is Reserve Bank of India, right? उसके prominent governor और जो भी member countries हैं उनके governor जो है after this Asian financial crisis जो है annually meet करते थे, but over the time 2008 की financial crisis, global financial crisis यानी जो recession का जो event globally hit किया था, उसके बाद इस G20 grouping में the heads of the state along with this central bank governors, the heads of the state started participating or meeting annually. Just for example, if head of the state is a president, or for that matter इंडिया के head of the state prime minister है, तो annually इस G20 summit में जो है participate करना शुरू करते हैं। इंडिया is one among the founding members of this G20, right? India is one among the founding members of this G20, और ये G20 जो है prominently informal grouping जो है, इसका core purpose as discussed कि इनिशियली जो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे था, बट ओवर द टाइम इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एनहेंस हुए। जस्ट फॉर एग्जांपल, it deals with issues related to climate changes, it deals with issues related to hunger, food security, cooperates on the issues of best practices, other issues related to disaster management, beyond international order के maintenance में this G20 as an informal grouping plays an important role. So beyond this macroeconomic stability, over the years G20 as an informal grouping has evolved in multiple domains. तो इसके aims and objectives over the years quietly evolve हुए हैं. Now we need to discuss who are its members. इस G20 summit के prominent member कौन से हैं, right? इसके मेंबर कौन से हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट है, राइट? प्रीलिम्स में जो है आपसे इस इनफॉर्मल ग्रुपिंग के मेंबर्स के बारे में एज एन एलिमिनेशन जो है क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो ऑन दिस मैप वी कैन सी द मेजर कॉन्टिनेंट्स। सो इन नॉर्थ अमेरिका प्राइमरली द मेंबर्स इंक्लूड कैनेडा, यूएसए, Mexico in northern part of the America, in South America particularly Brazil and Argentina are its member, और साउथ अफ्रीका में प्रोमिनेंटली साउथ अफ्रीका जो कि करेंटली 2025 की समिट होल्ड कर रहा है, एंड दिस अफ्रीका एज एन कॉन्टिनेंट हैज अफ्रीकन यूनियन। सो इन 2023 अफ्रीकन यूनियन इस G20 समिट का एक मेंबर बना। बियॉन्ड दिस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इन यूरोप we got to see UK as its member. Beyond UK we got to see France, Germany, Italy and Turkey. Beyond Turkey we got to see जो यूरोप और एशिया दोनों में ही एक्सटेंड करता है, रशिया as its members, right? These are these members, and beyond this इन यूरोप की कंट्रीज के यूरोपियन यूनियन भी इसका एक प्रोमिनेंट मेंबर है। इन एशिया विकम तो सऊदी अरेबिया,
Saudi Arabia is one of its member. India, China, Indonesia, then South Korea, and Japan, and Australia are the members of G20. यानी कि this G20 encompasses 19 major countries, major economies of the world, and along with this 19 countries, European Union and in 2023 African Union was made as its members. और ये 2023 की जो समिट है G20 की, as we know कि ये इंडिया में withheld हुई थी और इंडिया ने ही अफ्रीकन यूनियन की एज मेंबरशिप इस G20 में दी गई. तो यू कैन सी कि ओवर द कॉन्टिनेंट्स दिस मेंबर कंट्रीज हाउ दे स्प्रेड. एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट है कि हु आर इट्स मेंबर्स, राइट, हु आर इट्स मेंबर्स ऑफ दिस G20 summit. The prominent we can see this member countries of this G20. Now we need to proceed how is the what is the structure of this G20. prominently G20 का स्ट्रक्चर कैसा है. ये हेड ऑफ द स्टेट एनुअली अगर मिलते हैं तो prominently क्या इस G20 समिट का कोई सेक्रेटेरिएट है. जैसे हम यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज को देखते हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रीजन्स में प्रोमिनेंटली न्यूयॉर्क में जैसे आप देखने को मिलेगा यूएन की जो असेंबली होती है, राइट. तो क्या ऐसे सेक्रेटेरिएट है G20 का. तो there's no permanent secretariat of G20. Then how does it operate? The question is, if कोई secretariat नहीं है तो annual leaders meet करें, then how does it operate? So this G20 prominently operates with the perspective of Troika. Now, what does this Troika means? This Troika stands for three. That means previously to South Africa, Brazil hosted the G20 summit in 2024. Now South Africa is hosting in 2025, and in 2026 USA is assumed to be holding this G20 summit. That means these three countries, the past country which has hosted the G20, the present country, and the coming years country who is going to host the G20 summit, serves as a troika. दे वर्क इन कॉपरेशन. ये कॉपरेशन में एक दूसरे से काम करते हैं रिगार्डिंग एजेंडा सेटिंग, और ये कंट्रीज रिस्पेक्टिव सेक्रेटेरिएट्स के फॉर्म में सर्व करती हैं. दैट मींस देयर आर नो सेक्रेटेरिएट्स, रेदर there's a troika. We use the term troika prominently for the impermanent secretariat of this G20. तो जैसे ही ये चेयरमैनशिप जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज पे स्विच करती है, तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जो तीन कंट्रीज हैं आपस में म्यूचुअली कॉपरेट करती है ना. ये तो ब्रॉडर जो है सेक्रेटेरिएट की बात हुई, सेक्रेटेरिएट की बात. नाउ सिंस this annual leaders meet, then how does the agenda that is being ensured with a common consensus is shaped. तो साल में एक बार ये लीडर्स मीट कर रहे हैं, तो एजेंडा इससे पहले क्वाइट पॉसिबल है कि शेप किया जाता होगा. तो G20 का जो G20 के जो ब्रॉडर सेक्रेटेरिएट, ब्रॉडर जो फंक्शनिंग है, इसमें वी गॉट टू सी दैट्स फाइनेंस ट्रैक, जिसमें जो गवर्नर्स हैं सेंट्रल बैंक्स के, वो इसको जो है चेयर करते हैं. प्रोमिनेंटली यहाँ पे इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पर्टिकुलरली जो है, ये सारे जो भी एजेंडास या डेवलपमेंट या इश्यूज हैं, ये फाइनेंस ट्रैक का रोल होता है. साइमल्टेनियसली जो अदर देन नॉन फाइनेंशियल या नॉन इकोनॉमिक इन नेचर हैं, ये सारे जो है थ्रू शेरपा ट्रैक, यानी कि कंट्रीज या हेड ऑफ द स्टेट जो है अपनी कंट्रीज के लिए ऐसे नॉन में शेरपास को अपॉइंट करती है. ऐसा मेटाफोरिक रेफरेंस है शेरपा, जैसे माउंटेन में गाइडिंग के लिए शेरपास का यूज होता है. तो G20 समिट के एजेंडास को, जो भी इश्यूज पे डेवलपमेंट डिस्कशंस हो रही हैं विच आर इन नॉन इकोनॉमिक इन नेचर, वो प्रोमिनेंटली ये शेरपास जो है मेंबर कंट्री से म्यूचुअली डिस्कस करते हैं, उनके बारे में इश्यूज को एक कॉमन कंसेंसस डेवलप करते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल 2023 की G20 समिट में अमिताभ कांत वाज द शेरपा ऑफ आवर country, right? He was discussing though different issues related to women, food security, agriculture, climate change, youth, science and tech, infrastructural development, technology का development, ये सारे जो issues हैं, तो this Sherpa tracks extends particularly in this summit
टू टॉपिक अराउंड 15 टॉपिक्स पे जो है शेरपास का अपॉइंटमेंट हुआ था, जो ओवर द ईयर इन टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। और इन लीडर्स से मिलने से पहले ही मोर और लेस इन एजेंडास पे कंसेंसस बिल्ड हो जाता है। तो जब ये ग्लोबल लीडर्स मिलते हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स मिलते हैं, तो एक मोर ऑफिशियल एक सिग्नेटरी इन नेचर होता है कि इन चीज़ों पे कंसेंसस बिल्ड हो, यानी कि डेवलपमेंट साल भर ये शेरपास और फाइनेंशियल ट्रैक जो है इस G20 की करते हैं। तो हमने देखा कि स्ट्रक्चर ब्रॉडर जो है इस G20 एज एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग का क्या है। नाउ नेक्स्ट पर्सपेक्टिव पे आते हैं, इंडिया और G20। इंडिया और G20 का रोल कैसा रहा है? तो इंडिया, एज वी डिस्कस, आफ्टर रीसेंट जो 2023 की G20 समिट थी, इट वाज बीइंग होस्टेड बाय इंडिया। और इस G20 समिट में मेजर डेवलपमेंट्स लाइक ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस, ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस का जो है इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई विद द कॉपरेशन ऑफ ब्राजील, USA एंड इंडिया फॉर क्लीनर एनर्जी। इस ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस की बात की गई फॉर ग्रेटर इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन एशिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, एक आईमेक कॉरिडोर which is presumed to be beginning or restarting of the ancient trade routes, यानी कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई। ये रोड along with शिपमेंट और रेलवे तीनों ही ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हुए इंडिया से एक्सटेंड करते हुए अप टिल सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के जो अरबियन रीजन की या मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनमें थ्रू रेलवे कनेक्टिविटी एंड देन ग्रेजुअली थ्रू शिप्स एंड देन एक्सटेंडिंग अप टिल यूरोप। जो है इस कॉरिडोर के डेवलपमेंट की बात इस G20 का एक मेजर आउटकम था। बियॉन्ड दिस, इस G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन जो कि ग्रुपिंग है अराउंड 54 कंट्रीज ऑफ द अफ्रीका, जो इनके इंटरेस्ट को जो है ब्रॉडली रिप्रेजेंट करती है। इस अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप भी इस G20 समिट में हुई थी, जो ये प्रोमिनेंट अभी रिसेंट में डेवलपमेंट हुई थी। लेकिन इसके बियॉन्ड भी दिस G20 हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग इट्स इंडिया एज ग्लोबल साउथ लीडर। जो भी ग्लोबल साउथ के इश्यूज हैं उनको रिप्रेजेंट करने में, उनको वॉइसेस प्रोवाइड करने में ये G20 प्लेटफॉर्म जो इंडिया को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बियॉन्ड enhanced technological cooperation, जस्ट फॉर एग्जांपल इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मींस आधार एंड यूपीआई, ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडिया में की जाती है, इस प्रैक्टिसेस को इंडिया ने रेस्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज के साथ शेयर किया है। बियॉन्ड इश्यूज लाइक फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से जो इश्यूज हैं उस पे इंडिया ने ऐसे G20 प्लेटफॉर्म को लार्जली यूज किया है अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ग्लोबल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, एंड बियॉन्ड रिप्रेजेंटिंग इटसेल्फ एज एन लीडर, एज एन चैंपियनिंग लीडर अलोंग विद एंड रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर, राइट। तो G20 प्रोमिनेंटली इंडिया के इस पर्सपेक्टिव से जो है क्वाइट इंपॉर्टेंट रहा है। एंड G20 एट एन ओवरऑल अगर बोला जाए, इन सारे ब्रॉडर एजेंडास में हमने डिस्कशन किया कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे इनिशियली डिस्कशन था, देन इट ग्रेजुअली प्रोसीडेड टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, राइट। क्लाइमेट चेंज, आज की मॉडर्न डे रियलिटीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ग्लोबल टेररिज्म का इशू है उस पर डिस्कशन, राइट, उस पर डिस्कशन। और इस 2025 के समिट में इंडिया ने पर्टिकुलरली कुछ मेजर इश्यूज को हाईलाइट किया। जस्ट फॉर एग्जांपल, ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी बनाने की डिस्कशन की है। ट्रेडिशनल नॉलेज एज वी कैन सी, योगा, आयुर्वेद, ये क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो इनकी ग्लोबल रिपोजिटरी बनाने पे इंडिया का फोकस एज वॉइस्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बियॉन्ड दिस, जो सैटेलाइट डेटा यानी कि जो भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी प्रोमिनेंट G20 कंट्रीज कर रही हैं, इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन या स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उनको इन G20 कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ शेयर किया जाए, ताकि इश्यूज लाइक फ्लड या इश्यूज रिलेटेड टू डिजास्टर, मोर प्रिसाइज पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें यूज की जा सके। इस पे जो है फोकस हमें जो है इस इंडिया की तरफ से जो इस पे इशू अराइज रखा गया है। बियॉन्ड कर्ब ऑन ग्लोबल टेररिज्म,
चेक ऑन ग्लोबल टेररिज्म पे भी इंडिया ने से किया है, जिसमें ड्रग से एसोसिएटेड इश्यूज पे डीपर डीपर हाईलाइट रखा गया है। और एक इंपॉर्टेंट ड्रग की यहाँ पे डिस्कशन की गई है, दैट इज फेनाटेनिल। अब क्योंकि ये ड्रग का नेमिंग किया गया है, इस ड्रग को जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए पर्सपेक्टिव यूज किया जाता है, तो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एंड एज आई डिस्कस की जनरल स्टडी पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ड्रग जो है एक सिंथेटिक ओपियाइड है, सिंथेटिक ओपियाइड है जो कि प्रोमिनेंटली लीगल वे में ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है ड्यूरिंग सर्जरीज एज वेल एज फॉर ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट। बट इस ड्रग की जो खास बात यह है कि इट इज 50 to 100 times 50 to 100 times more effective than मॉर्फिन एंड हीरोइंस। जो अदर ड्रग्स हैं, मॉर्फिन और हीरोइन से जो है अराउंड 50 to 100 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव, मोर कैपेबल है। यानी कि स्लाइटर मिलीग्राम, अराउंड 2 मिलीग्राम ऑफ दिस ड्रग कैन कॉज एडवर्स इफेक्ट, नोजिया, इश्यूज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी इश्यूज इससे एसोसिएटेड रहते हैं अगर ओवरडोज हो गया तो। बियॉन्ड दैट आपकी जो लिप्स हैं वो ब्लू हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये जो ड्रग है प्रोमिनेंटली सिंथेटिक है, यानी कि लैब में बनाया जाता है, चीपर टू मेक है। और इसका यूज जो है, जो ड्रग कार्टेल्स है, यानी कि जो भी टेररिज्म के लिए जो ड्रग्स, इलीगल ड्रग का डीलिंग की जाती है, उसको जो है इस ड्रग को प्रोमिनेंटली यूज किया जाता है। एक ऑर्डरलेस गैस है, तो किसी के साथ भी मिक्स किया जा सकता है और इसको ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। तो प्रोमिनेंटली इस ड्रग का यूज जो है इंटरनेशनल टेररिज्म का जो फंडिंग है उसके लिए यूज किया जाता है। और इसी पर्सपेक्टिव से इंडिया ने इसमें जो है कोर हाईलाइट किया है। ये ड्रग और न्यूज था, इसीलिए हमें जो है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसको समझना क्वाइट क्रूशियल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट जो है कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, जस्ट फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल इकोनॉमी में भी इंडिया का डीपर फोकस है, जो कि G20 समिट में मेजर हाईलाइट बाय आवर प्राइम मिनिस्टर वाज बीइंग गिवन इन हिज स्पीच। इसकी पर्सपेक्टिव में जो हम देख सकते हैं कि इंडिया का रोल इन दिस G20 समिट प्रोमिनेंटली कैसा रहा है, राइट? इंडिया का कैसा रहा। नाउ ओवरऑल अचीवमेंट्स ऑफ G20 की अगर बात की जाए तो G20 ओवर द ईयर्स सिंस इट्स इनकार्नेशन हैज बीन लार्जली हेल्पफुल इन इंश्योरिंग इंटरनेशनल peace and stability peace and stability beyond that UN लेड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, राइट, SDGs जो हैं, देयर आर 17 SD सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो बाय 2030 मेंबर कंट्रीज को जो ऑब्लाइज किया गया है यूएन के कि अचीव करने के लिए, ताकि एक सस्टेनेबल लिविंग अक्रॉस द वर्ल्ड हो सके। तो इन एजेंडाज के जो भी प्रोग्रेस हो रहे हैं उस पर डिस्कशन के लिए G20 समिट क्वाइट रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि एक मोरल ऑब्लिगेशन इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म से वो होता है। बियॉन्ड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इश्यूज लाइक फूड सिक्योरिटी पर डीपर एम्फेसिस देखने को मिला है। जस्ट फॉर एग्जांपल अफ्रीका जो कि फूड सिक्योरिटी के इशू से, हंगर के इशू से सफर करता है, तो G20 कंट्रीज की G20 ग्रुपिंग की जो कंट्रीज है वो प्रोमिनेंटली फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती हैं, एज एन एड जो है फूड प्रोवाइड करती है। इंडिया इसमें एक लीडिंग चैंपियन मेंबर है। बियॉन्ड इश्यूज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड फाइनेंस, इन इश्यूज पे भी G20 एक चैंपियनिंग कॉज होता है। इंटरनेशनल अनसर्टेनिटीज लाइक कोविड लेट अनसर्टेनिटीज के टाइम पे प्रॉपर वैक्सीन का सप्लाई चेन हो, उसमें भी G20 एज एन ग्रुपिंग, एज एन मेंबर कंट्रीज हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। वी गॉट टू सी इंडिया जो है वैक्सीन मैत्री के थ्रू या फिर दिस मैटर अपने जो वैक्सीन का जो भी डेवलपमेंट इंडिया में हुआ वो मेंबर कंट्रीज के साथ शेयर करने में एक लीड कंट्री थी। तो अनसर्टेनिटीज लाइक कोविड और जो सप्लाई चेन का प्रोमिनेंट इश्यूज था, इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल जो कि जिनका स्लम्पेज देखने को मिला था, ऑल बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन, इसमें भी G20 एस एन ग्रुपिंग ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बियॉन्ड वॉर्स को रोकने में भी लार्जली G20 समिट जो है, G20 ग्रुपिंग क्वाइट हेल्पफुल होती हैं। एक कॉमन कंसेंसस में भी डेवलप करने में मेंबर कंट्रीज में एनुअली मीट करती हैं। बियॉन्ड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जैसे इंडिया की आधार, UPI
ये क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। तो इनसे जो मेंबर कंट्रीज में आपस में शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म भी क्वाइट हेल्पफुल है कि एक दूसरे को असिस्ट करे, ताकि न सिर्फ इंडिविजुअल कंट्री बट रेस्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज एंड अक्रॉस द वर्ल्ड के डेवलपमेंट जो है ट्रिकल डाउन हो सके। तो G20 as an informal grouping has this broader achievements and agendas, but there are certain issues and challenges associated with this G20। just for example we got to see कि USA ने जो है इस G20 समिट में पार्टिसिपेट इस साल नहीं किया है। That means largely it was seen as it was an agenda driven move by USA कि USA जो है ऐसी कोई समिट होना नहीं देना चाहता, अपने एजेंडा को परस्यू करना चाहता, प्रेशराइज कर रहा था साउथ अफ्रीका को। तो चैलेंजेस और एसोसिएटेड यहाँ पे ये है कि लार्जली एजेंडा ड्रिवन प्लेटफॉर्म हो जाता है ये। बियॉन्ड इट लैक्स प्रॉपर टीटी, दैट मीन्स इफेक्टिव पावर्स या प्रिविलेजेस नहीं है, मोर एक वॉलंटियर नेचर का जो भी डेवलपमेंट इस G20 समिट में होती हैं वो है, राइट। बियॉन्ड दिस इश्यूज लाइक इट हैज बीन अनेबल टू प्रिवेंट वॉर्स। जस्ट फॉर एग्जांपल जो रशिया यूक्रेन की वॉर है, तो ये प्रिवेंट करने में लार्जली हेल्पफुल है। इजराइल एंड हमास का जो इशू है इसको प्रिवेंट करने में भी ये लार्जली इतना इफेक्टिव नहीं रहा है, राइट। मिडिल ईस्ट में इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं, उनको प्रिवेंट करने में ये G20 समिट इतना इफेक्टिव नहीं रहा है। बियॉन्ड दैट ये इसमें जो है मेजर डोमिनेशन जो वेस्टर्न नेशन का है, तो ऐसा वेस्टर्न डोमिनेटिंग लॉबी भी इस G20 को जो है देखने को मिलता है। तो कुछ इश्यूज एंड चैलेंजेस ब्रॉडली ये G20 समिट जो है इस पे हम देखने को मिलता है। बियॉन्ड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आज की मॉडर्न डे रियलिटीज के हैं वो है क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड इश्यूज हैं। मोर इम्पॉर्टेंट जो सदर्न ब्लॉक की कंट्रीज हैं जो कि एनर्जी के ट्रांजिशन के लिए उनको ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए जो भी इक्विपमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके फंड की रिक्वायरमेंट और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बाय द पेरिस क्लाइमेट डील डेवलप्ड नेशंस पे है, डेवलप्ड कंट्रीज में। तो यूएसए इससे ऑल टुगेदर दूर भागता है। दैट मीन्स जो मॉडर्न डे रियलिटीज हैं उसको टैकल करने के लिए G20 समिट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के पर्सपेक्टिव से ही काम कर रहा है। जो रियल नीड्स हैं उस पर कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशंस नहीं डेवलप कर पा रही है, राइट। तो ये कुछ इश्यूज एंड क्रिटिसिजम्स हैं। तो इन द एंड आखिर क्या क्या सॉल्यूशंस इस G20 को मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए करना चाहिए। सबसे पहला पर्सपेक्टिव इस बात की रियलाइजेशन लेके आना कि वर्ल्ड जो है अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि प्रोमिनेंट इकोनॉमीज या पावर्स लाइक यूएसए, चाइना एंड रशिया, इन्हीं के पास पावर कंसंट्रेटेड नहीं है, रेदर मल्टीपोलर वर्ल्ड है। यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ साथ जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, मोर स्पेसिफिक जो सदर्न ब्लॉक है, जो सदर्न वर्ल्ड है, उनके इश्यूज को भी इस पे ड्यू से ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिलना चाहिए। सर्टेन फंक्शंस, पावर्स एंड अथॉरिटी भी G20 को जो ऐसे इनफॉर्मल ग्रुपिंग को दी जानी चाहिए। अगर कोई कंसेंसस बिल्ड हो रहा है तो उसके पीछे कुछ अकाउंटेबिलिटी हो, तभी इफेक्टिवली काम कर सके। एंड बियॉन्ड एजेंडा ड्रिवन पर्सपेक्टिव से जो मेंबर कंट्रीज हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से अगर काम करें देन इट कैन बी सूटेबली इफेक्टिव। एंड बियॉन्ड दैट जो ब्रॉडर हमने देखा कि अफ्रीकन फिलॉसफी है उबंटू, और फॉर दैट मैटर इंडिया की जो फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम की, इस फिलॉसफी पे अगर ये G20 एज एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग प्रोमिनेंटली फंक्शन करे तो इफेक्टिवली जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं ये वर्ल्ड की 20 मेजर इकोनॉमीज जो है इस चीज को सूटेबली एड्रेस कर सकती हैं। तो दिस इज ऑल फॉर दिस G20 समिट रिलेटेड डेवलपमेंट जो हमने करंट के पर्सपेक्टिव से डील किया। अब इन द एंड एक कंसेप्ट जो यहाँ पे छूट गया है कि देर आर 19 मेजर इकोनॉमीज और यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन भी इसका मेंबर है। यानी कि यूरोप की जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, टर्की, दे वर द मेंबर्स ऑफ दिस यूरोप की कंट्रीज जो G20 का पार्ट है। लेकिन उनके बियॉन्ड ये यूरोपियन यूनियन को क्यों यहाँ प्रोमिनेंस है, और फॉर दैट मैटर अफ्रीका में साउथ अफ्रीका का तो रिप्रेजेंटेशन था ही, ये अफ्रीकन यूनियन का क्यों यहाँ पे एडिशन देखने को मिला है, क्यों ना इनको जो है एक साथ ही रखा जाए, क्योंकि इसी यूनियन का ये भी कंट्रीज पार्ट है। तो उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो इंडिविजुअल कंट्रीज हैं इनकी अपनी इकोनॉमी का साइज क्वाइट लार्जर है, जिसमें ग्लोबल ट्रेड में इन कंट्रीज का, इन मेजर इकोनॉमीज जो इंडिविजुअल कंट्रीज इनका से ज्यादा है। और जो यूनियंस हैं इसमें जो मेंबर जो भी कंट्रीज हैं उनका कलेक्टिव से एज एन इकोनॉमिक माइट के पर्सपेक्टिव से बिहाफ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन क्या है,
एक इकोनॉमी के बेसिस पे फॉर्म किया हुआ ये यूनियन है, जो कंट्री वाइज जो ट्रेड है उसको ईज किया जा सके, उसको मोर प्रोग्रेसिव बनाया जा सके, इसलिए ये यूनियन बनाया गया है। तो एज एन कलेक्टिव यूनियन इनका इकोनॉमिक साइज ज़्यादा है, और इंडिविजुअल कंट्रीज, ये जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज है, जो 19 कंट्रीज हैं, इनका अपना इंडिविजुअल साइज इतना ज़्यादा है कि ग्लोबल ट्रेड में इनका से, इनका पर्सपेक्टिव, इनका वॉल्यूम क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए G20 कंट्रीज में 19 कंट्रीज हैं, एंड देन यूरोपियन यूनियन, and simultaneously African Union. So this is all for today's development. Hope you have liked this session related to G20. Till then, goodbye and all the best.